آج کی یہ ویڈیو بہت اہم اور دل کو چھو لینے والی ہے۔ السلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے قیامت کے آخری رمضان کی، جو دنیا کا آخری رمضان ہوگا۔ یہ نشانیاں قرآن و حدیث سے لی گئی ہیں، تو غور سے سنیے اور اپنے اعمال پر غور کریں۔ چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرب قیامت میں آنے والا دنیا کا وہ آخری رمضان کہ جس رمضان کے اندر پوری دنیا کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا جائے گا اور ہر طرف زلزلوں کی بھرمار ہوگی، اور جس رمضان میں ایک ایسی خوفناک چیخ سنائی دے گی کہ جس چیخ کی وجہ سے انسانوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ اور قیامت سے پہلے آنے والے آخری رمضان میں ایسا کیا ہوگا کہ لوگ اندھے بہرے ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز اور یہ کائنات ایک وقت مقررہ تک ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے فنا ہونے کا وقت بھی مقرر کر دیا، اور اس دنیا کائنات کے فنا ہونے کا نام ہی قیامت ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرنے سے لے کر اس کائنات کے فنا ہونے تک اس کائنات میں ظاہر ہونے والی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ ان 3 حصوں کو مکمل ہونے کے بعد یہ دنیا فنا ہو جائے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 3 حصے کون سے ہیں، اور ان 3 حصوں میں قیامت کی کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، اور آج دنیا کے جس حصے میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا کا کون سا حصہ ہے، اور قیامت سے پہلے آنے والا دنیا کا آخری رمضان دنیا کے کون سے حصے میں آئے گا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جواب بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ رحمان کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس دنیا پر ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب ذوالجلال کی ذات ہے، جو صاحب جلال ہے اور اکرام کرنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ہر ایک نبی نے قیامت کے بارے میں اپنی امت کو بتایا، اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا، اور اس دنیا کے بننے سے لے کر اس دنیا کے ختم ہونے تک قیامت کی جو نشانیاں ظاہر ہوں گی وہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، علامات بعیدہ۔ پیارے دوستو، علامات بعیدہ قیامت کی ان نشانیوں کو کہا جاتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ تمام انبیاء کرام کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اپنی اپنی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانا، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں خاتم النبیین بن کر تشریف لانا اور چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، یہ علامات بعیدہ میں شامل ہیں، اور ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک علامات بعیدہ مکمل ہو چکی ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں دنیا کے دوسرے حصے کے بارے میں کہ جس کے اندر قیامت کی وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی جن کو علامات صغریٰ کہا جاتا ہے۔ علامات صغریٰ قیامت کی وہ نشانیاں ہیں جن کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، اور ان کے ظہور کی شروعات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہو چکی ہے، اور اب وہ وقت دور نہیں کہ جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی اور قیامت قائم ہو جائے گی، جیسا کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو
एक दूसरे से मिलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे और क़यामत को इन दो उंगलियों की तरफ भेजा गया है, यानी ये दो उंगलियां जितनी आपस में करीब है, क़यामत भी मेरे बाद इतनी ही करीब है। अलामत सुगरा क़यामत की वो निशानी है जो आज के ज़माने में मुकम्मल हो चुकी है, जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बे क़यामत में एक वक्त ऐसा आएगा कि जब जना आम हो जाएगा और कत्लो गारत आम हो जाएगी और सूद का कारोबार होगा। औरतें लिबास पहनकर भी नंगी होंगी और गाने बजाने की कसरत होगी और लोग नमाज पढ़ना छोड़ देंगे। झूठे इंसान को सच्चा और सच्चे को झूठा माना जाएगा और लोग दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे। औरतें मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करेंगी और मर्द औरतों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वो तमाम तर निशानियाँ हैं जो आज के इस दौर में मुकम्मल तौर पर पूरी हो चुकी हैं और अब वो वक्त बहुत करीब है कि जब क़यामत की बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा, जिनको अलामात कुबरा कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, आज की जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये दुनिया का वो तीसरा हिस्सा है कि जिसके बाद क़यामत कायम हो जाएगी और दुनिया के इस हिस्से में क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों का ज़हूर होगा। जैसा कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाना, दज्जाल का ज़हूर होना या जूज माजूज कौम का खरूज दाबतुल अर्ज़ और सूरज का मगरिब से तलू होना वगैरह। प्यारे दोस्तों, क़यामत की इन्हीं बड़ी निशानियों में से कुर्बे क़यामत में आने वाला दुनिया का आखिरी रमज़ान भी है कि जिसके बारे में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मुकम्मल तौर पर आगाह किया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत इस वक्त तक कायम ना होगी जब तक ज़माने आपस में करीब ना हो जाएं, यानी साल एक महीने के बराबर हो जाए और एक महीना एक हफ्ते के बराबर हो जाए और एक हफ्ता एक दिन के बराबर और एक दिन एक घंटे के बराबर और एक घंटा एक चिंगारी की मानिंद होगा जो जल कर फौरन राख बन जाती है। यानी क़यामत से पहले वक्त इतनी तेज रफ्तारी से गुजरेगा कि किसी को किसी की कोई खबर ना होगी। प्यारे दोस्तों, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के आखिरी रमज़ान के बारे में बताते हुए इरशाद फरमाया कि ये रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। इस रमज़ान के बाद ये पाक और बाबरकत चीख सुनाई देगी। ये चीख इतनी खौफनाक और ज़ोरदार होगी कि जिसको सुनने के बाद दुनिया की हर मखलूक सहम जाएगी और लोग इस आवाज़ की तलाश में पड़ जाएंगे कि ये आवाज़ कैसी थी और कहां से आई, लेकिन कोई भी इंसान इस आवाज़ की तलाश ना कर सकेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस रमज़ान ऐसी आवाज़ सुनाई देगी कि जिसकी तलाश ना लगाई जा सके, तो इसके बाद एक साल का रिज़्क अपने घरों में जमा कर लेना, क्योंकि इसके बाद इस दुनिया से रिज़्क उठा लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, क़यामत से पहले आखिरी रमज़ान में सूरज ग्रहण लगेगा और आसमान पर सितारों की मानिंद कोई चीज़ रोशन होगी और क़यामत से पहले आने वाले आखिरी रमज़ान मुबारक में मुल्क शाम में सफियानी की जानिब से मुसलमानों का कत्ल आम किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया के आखिरी रमज़ान में एक ज़ोरदार चीख सुनाई देगी, तो इस वक्त सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह चीख रमज़ान के अव्वल हिस्से में सुनाई देगी या रमज़ान के निसफ हिस्से में या रमज़ान के आखिरी हिस्से में सुनाई देगी। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आवाज़ रमज़ान के निसफ हिस्से में ज़ाहिर होगी। जब निसफ रमज़ान में जुम्मे की रात होगी, तो इस रात आसमान से एक ज़ोरदार चीख सुनाई देगी कि जिससे तकरीबन 70,000 लोग बेहोश हो जाएंगे और इस ज़ोरदार चीख को सुनने के बाद 70,000 लोग अंधे हो जाएंगे और बाज़ रवायात के मुताबिक 70,000 लोग रास्ता भटक जाएंगे और इस खौफनाक चीख की वजह से 70,000 लड़कियों की बकारत ज़ाइल हो जाएगी
हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान सुनने के बाद सहाबा कराम ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत में से इस आवाज़ से कौन महफूज रहेगा? तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस वक्त अपने घर में रहे और अल्लाह तबारक व तआला के हजूर सजदा करे और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर दुआएं करे और ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस आवाज़ के बाद एक और आवाज़ जाहिर होगी। पहली आवाज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ होगी और दूसरी आवाज़ शैतान की आवाज़ होगी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ानुल मुबारक में चीख सुनाई देगी और शवालुल मुकर्रम में शोर शराबा होगा और ज़िलक़द के महीने में कबाइली बगावत होगी और ज़िलहज्जा को खून खराबा होगा और मुहर्रमुल हराम का महीना तो क्या ही महीना होगा। तो हमने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह चीख कैसी होगी? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 15 रमज़ान मुबारक की रात एक ज़ोरदार धमाका होगा जो सोने वालों को बेदार कर देगा और खड़े होने वालों को बिठा देगा और शरीफ ज़ादियाँ घरों से बाहर निकल आएंगी। और इस साल जल्जलों की कसरत होगी। जब तुम जुम्मे के दिन फजर की नमाज पढ़ लो तो अपने घरों में दाखिल होकर खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेना और अपनी चादर ओढ़ लेना और अपने कान बंद कर लेना। और जब तुम्हें चीख का एहसास हो तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदे में गिर जाना और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं मांगना और तकबीरें कहना और ये पढ़ना कि पाक है वो ज़ात जो तमाम नकायद से पाक है। जो ऐसा करेगा वो नजात पाएगा, जो ऐसा नहीं करेगा वो हलाक हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, रमज़ान मुबारक की 15 तारीख को रात को चांद ग्रहण और दिन को सूरज ग्रहण लगेगा और जिस रमज़ान मुबारक में ये तमाम तर निशानियाँ पाई जाएंगी, इस रमज़ान मुबारक के एक साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी और एक साल के अंदर अंदर पूरी दुनिया को फना कर दिया जाएगा। प्यारे भाइयों, बस इतना ही आज के लिए। अल्लाह हमें सबको हदायत दे और नेक अमाल की तौफीक दे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो मिलती रहे। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें क्योंकि ये निशानियां हम सब के लिए सबक हैं। अल्लाह हम सब को क़यामत के दिन कामयाब करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।